Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Legal Matters. We're going to be discussing legal issues, and if you've got anything to do with immigration, litigation or representation, then please give us a call. Hamara jo email address will be coming on screen. Our contact number will also be, you can pick that up from the control room. So inshallah aapko ye generic information hum denge so that you are fully aware about the kind of implications and kind of some of the issues jo aap hame batayenge uske bare mein. We will try to give you as much as possible in the time provided. And as usual, before we start the program, apne colleague ko welcome karne se pehle obviously hum thoda sa ye bhi kehte hain mazrat karte and also condemn the kind of the terrorism which has been happening in Pakistan and the Christian church and the Christian brotherhood who've been targeted mercilessly. Our sympathies go for them people on behalf of Hidayat management and studio and everybody else, and of course the legal team here. We condemn that very strongly, any kind of terrorism which is taking place, which is totally unjust and not acceptable. Khalid Sahab, obviously I want to welcome you to the program. Thank you very much. बहुत शुक्रिया जी बुलाने का once again. Thank you. And Khalid Sahab, just because of the time, I'm going to go straight into the program. Last time हमने थोड़ा सा views को बताया, there's some changes which have happened in the immigration and some of the rules. Let's just recap and just so that anybody who's watching the program so they're fully aware. जी last week हमने एक discuss किया था केस जो कि visitor visa के मतलब था. एक landmark केस आया जिसमें अपील visitor visa की अपील जो है ना was allowed under human rights. That is good development. Ji, sorry to interrupt you. Viewers को बताते चलते हैं that because normally visitors don't have the rights. जी Let's just make that clear. यही हुआ था कि कुछ देर पहले जब Immigration Act 2014 आया था, उसमें उन्होंने जो visitor right of appeal था, full right of appeal, उसको उन्होंने abolish कर दिया था. तो उस वक्त से लेके अब तक since last week जितनी भी अपील थी वो अक्सर रिफ्यूज़ कर देते थे और उनका कोई रेमेडी नहीं थी. तो रिसेंटली जो है ना उसको ह्यूमन राइट्स पे जो है ना चैलेंज किया गया. मुस्तफ़ा केस है जिस पे कोर्ट ने जो है ना जो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल था उसने लॉ कर दिया था और फिर उसके बाद उन्होंने अपील की थी अपर ट्राइब्यूनल में कि जज ने गलत डिसीजन किया है और अपर ट्राइब्यूनल ने कहा कि नहीं ये राइट डिसीजन था. इट्स अ ब्रीच ऑफ Article 8. Article 8. So that is a good development. Very good. Obviously, agar anybody's in this situation where they feel that they applying for a visitor's visa or they've been this kind of situation, you're in that kind of a predicament, then feel free to contact us. We'll be more than happy to help you and advise you. And also, we were just talking about, थोड़े से ये भी बताते चलते हैं. Obviously, when you have anything to do with जब with the new rules which have come in and make it very tight on asylum people. इसके साथ साथ और दूसरी चीज़ भी मैं कहना चाहता था कि 2 मार्च से उन्होंने जितने भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम थे जी उसकी अपील राइट्स है वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं. जितने भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वीज़े थे उनके सभी के 2 मार्च से उन्होंने जो अपील राइट्स है ख़त्म. ये स्टेज बाय स्टेज सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं और रिसेंटली उन्होंने 2 मार्च से ये भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम जितनी भी थी स्टूडेंट की थी या दूसरी टियर 5 की थी सारे उन्होंने जो है ना पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे उन्होंने ख़त्म कर दिया. तो मेजर obviously there's going to be a big impact जो इस वक्त इस सिचुएशन में पॉइंट बेस्ड सिस्टम में जो most of the categories जो इस वक्त जो बंदे इसमें हैं they will be affected very much. जी उन्होंने कहा कि आप रिव्यू कर सकते हैं. रिव्यू के लिए यू कैन मेक एप्लीकेशन. तो रिव्यू भी होम ऑफिस ही करेगा तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने आउटकम क्या होगी. बिल्कुल आउटकम क्या ये पॉइंट बाय सिस्टम को आई वांट टू डिस्कस दिस लिटिल बिट मोर. कॉल आ रही से शामिल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. हेलो जी, वेलकम टू द प्रोग्राम. कौन कहाँ से? मैं साउथ हाल से बोल रहा हूँ. जी आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मनीष. वेलकम टू द प्रोग्राम. एंड आप अपना क्वेश्चन बताएंगे मनीष? जी मैंने केस लगाया हुआ था मेरिट के बेस पे. मैंने वो पता करना है कि उसका क्या कुछ बनेगा. काय पे लगाया था आपने, फिर से बताएं? जी मैंने 1 साल पहले मैरिट की थी. अच्छा और मेरी वाइफ की. कितनी देर पहले एप्लीकेशन की थी? 1 ईयर. 1 साल 1 ईयर अगो मैंने एप्लीकेशन डाली थी. 1 ईयर हो गया. 1 साल हो गया जी. उसका एक्नॉलेजमेंट आया था आपको? जी उन्होंने फर्स्ट टाइम रिफ्यूज कर दिया था
और सेकंड नाम मैंने कोर्ट में डाला तो उन्होंने बोला कि आप होम ऑफिस में जाके कंफर्म करो. अब मेरे सोलिसिटर ने उन्होंने मुझे राइट टू अपील के लिए डाला हुआ, तो क्या उसका क्या कुछ हो सकता है? ठीक है. ओके, लास्ट ईयर आपने अपील डाली थी, एप्लीकेशन रिफ्यूज और राइट ऑफ अपील में. तो आपका जो सोलिसिटर है उसने रिक्वेस्ट की थी कि राइट ऑफ अपील दिया जाए इनको. जी. कितनी देर पहले? नियरली 9 मंथ पहले. अच्छा, 9. चले मैं हम जवाब देते हैं. ठीक है. ओके Manish, thank you for your question. Khalid, before we discuss these questions, let's just carry on point based system का जब हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा let's carry on with that. जी वो उसमें ये है कि आप उन्होंने कहा जी कि आप रिव्यू कर सकते हैं, उसकी फीस भी है मेरा ख्याल £80. और रिव्यू कौन करेगा? वो भी होम ऑफिस वाले करेंगे. तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके कामयाब होने के कितने चांसेस है. वेरी मिनिमम चांसेस है. तो मेरे ख्याल में कोई उसकी प्रॉपर रेमेडी नहीं है कि यहाँ पे आप जैसे अपील सिस्टम था, आप कोर्ट में जाएं, इंडिपेंडेंट जजेस हैं, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जो है ना अपील विन कर जाएं. लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. वेरी डिफिकल्ट. And particularly जैसे आपने अभी मेंशन करा, when it goes back, the people are going to be making a decision will be the home office. जी बिल्कुल, very same people. So it's going to be उनको the percentages and everything has to be cut down. और फिर ये है कि जब आप रिव्यू के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा उन्होंने एरर किया है, क्या किया है, किस वजह से आप रिव्यू मांग रहे हैं. तो वो फिर यही कहेंगे कि नहीं जी हमने ये जो फैसला पहला किया था वो ठीक किया था. बिल्कुल, अक्सर यही होता है. Of course, and this is a very tragic. And it is very likely कि जो आपके रिव्यू हैं वो successful होंगे. Okay, also Khalid साहब, ये जो अभी recently जो इस वक्त asylum detention center में जो हाल हो रहा है, let's just reflect back on that, because obviously it's a very sad situation, because then some of these people don't deserve to be in them situations, in them circumstances, and we condemn that also. थोड़ा सा let's just put views को बताते चलें. They are making it very difficult at the moment. जी उन्होंने ये शुरू किया था कि पहले asylum एक जो था उसको उन्होंने एक फास्ट ट्रैक सिस्टम लेके आए. तो उसमें अक्सर आजकल ये करते हैं कि जो बंदे असाइलम करते हैं, अगर बच्चे साथ नहीं हैं तो उनको जो है ना उनका केस फास्ट ट्रैक कर देते हैं. बिल्कुल. तो फास्ट ट्रैक से वो जो है ना लोगों को डिटेन कर लेते हैं कि जी आपका केस चूँकि विद इन फ्यू वीक्स 6 to 8 वीक्स जो है ना वो हो जाएगा, और लिहाजा जो है ना आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जल्दी आपको फारिग कर देंगे. तो इस बेसिस पे वो जो है ना लोगों को डिटेन कर लेते हैं और कहते हैं जी से कॉल ले लेंगे. खालिद साहब कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो ब्रदर, वकील साहब से बात कर सकता हूँ? जी, वेलकम टू प्रोग्राम. आप अपना नाम बताएंगे? आप लाइव ऑन एयर हैं इस वक्त, अपना नाम बताएं. जी मेरा नाम आमिर है. अच्छा आमिर साहब, क्वेश्चन बताएं. जी आपकी बैकग्राउंड पे इतनी नॉइज आ रही है. नाम आमिर है और मैं 14 साल से इस मुल्क में हूँ. ठीक है जी, और मुझे 3 साल का पहले वीजा मिला था. ठीक है, ओके जी, और 3 साल का मिला था, 8 महीने हो गए, मैंने दोबारा भेजे, अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है. तो क्या ठीक है, आपने 8 months पहले भेजा है उससे एक्सटेंशन करने के 8 महीने हो गए. ठीक है, एक्सटेंशन करने के. जी ठीक है, शुक्रिया आमिर साहब, आपका क्वेश्चन आ गया है. और तो नहीं कोई क्वेश्चन आपका अपार्ट फ्रॉम दिस वन? ये पूछने अभी मुझे दोबारा 3 साल का देंगे या डिफरेंट देंगे, क्योंकि मेरे 14-15 साल हो गए सर. ठीक है, बिल्कुल सही है. ये सेकंड एक्सटेंशन है आपकी. हेलो आमिर साहब. जी ब्रदर, बस ये सुनना था अगर आप बताएं. ठीक है, आपको बता दें कि वॉचिंग प्रोग्राम आपको जवाब दे दें. बहुत बहुत शुक्रिया. कॉल आ रही से शामिल कर दें. हेलो 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 जी, आप बात करें, ये लाइव ऑन एयर. वेलकम टू द प्रोग्राम लीगल मैटर्स. हेलो जी, वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? जी मैं लंदन से बात कर रहा हूँ. निशान, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने अभी रिसेंटली 2 वीक पहले यूरोपियन EEA जो जमा कराया ना केस. ओके, किस बेसिस पे? किस बेसिस? इसके बारे में पूछना था कि उन्होंने जो एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजा है उसमें उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने तकरीबन 1.5 वीक बाद भेजा, उसमें लिखा कि आपने हमें एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया रिलेशनशिप का. ओके, इसका क्या वेट करना पड़ेगा क्या? किस बेसिस पे आपने की एप्लीकेशन? मैरिज. मैरिज?
जी नहीं मेरी फैमिली रिलेटिव मेरे मामू होते हैं. अच्छा, फैमिली. अच्छा, डिपेंडेंट का किया आपने? जी जी जी. तो क्या उन्होंने कहा है? उन्होंने ये मतलब अब इकोनॉमिक लेटर उन्होंने भेजा है कि मेरे को 2 वीक पहले जमा कराया हुआ है, तो उन्होंने 1.5 वीक बाद लेटर भेजा कि आपने एविडेंस कोई रिलेशनशिप का प्रोवाइड नहीं किया या नहीं है. तो आपने किया था या नहीं किया था? ये किया था, हमने मैरिज सर्टिफिकेट लगाया था. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है आपका? उन्होंने रिफ्यूज कर दिया या वैसे ही उन्होंने मेंशन किया? नहीं वैसे यानी कि उन्होंने लिखा है खाली जो, लेकिन क्योंकि 1 वीक पहले जमा कराया इकोनॉमिक लेटर तकरीबन हुआ है जी. इनका बता सकते हैं आप ज़ीशान भाई वॉच द प्रोग्राम, आपको जवाब देंगे. थैंक यू फॉर द कॉल. आपका सवाल आ गया है, वी अंडरस्टैंड दैट. एक और कॉल आ रही से शामिल करते हैं. हेलो, वेलकम टू द प्रोग्राम. Hello. Hi, who's calling? Yeah. Can we have your name, please? Akasha. Natasha. Okay, and can we have your question? Yeah, I have a question. Basically, can I speak in Urdu? Yes, you can. आप उर्दू में बात करें. All right. जी. ये है कि मैंने after 2 years में यहाँ पे आई और मैंने अपना मुझे indefinite stay like visa permit card मिल गया. ठीक है. अब मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना है कि मुझे अपनी नेशनैलिटी के लिए कब अप्लाई करना है, क्योंकि मैं एज अ स्पाउस वीजा आई थी. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है मेरा. नहीं, एक मिनट. आपको आपके मैरिज स्टिल सबसिस्टिंग है? या मैरिज? जी, आपकी चल रही है मैरिज? या मेरी मैरिज चल रही है अभी भी. और आपको कब स्टे कब मिला? आपको इंडेफिनिट कब मिला? मुझे इंडेफिनिट Feb 15 में मिला है, 1 month बिफोर ही मिला है. अभी तो चलो ठीक बताएंगे आपको जवाब. थैंक यू, समझ गए. थैंक यू फॉर दैट. शुक्रिया आपका नताशा. वेलकम. लेट्स गेट द कॉल. एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो, वेलकम टू प्रोग्राम. कौन कहाँ से? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ. जी, आप अपना नाम बताएंगे प्लीज. मेरा नाम फाइजा. थैंक यू. आप अपना क्वेश्चन बताएं. मैंने पूछना था कि मेरे हस्बैंड का और 2 बेटियों का डिसीजन हमारा कोर्ट से होके आ गया, लेकिन अभी तक पासपोर्ट्स नहीं हमारे आए. तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कोर्ट के डिसीजन के बाद कितना टाइम लगता है पासपोर्ट्स आने में? कितनी देर हुई डिसीजन हुए को? 14 नवंबर को कोर्ट से स्टैंप होके आया लेटर. और अभी तक कुछ नहीं आया आपको? कोई बायोमेट्रिक नहीं आया? कुछ नहीं आया? नहीं, बायोमेट्रिक्स हमारा ऑलरेडी उधर JR के लिए अप्लाई किया था. बायोमेट्रिक्स जब हमने अप्लाई किया नहीं, आपके बायोमेट्रिक कार्ड नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आया. कुछ भी नहीं आया नवंबर से लेके अब तक? ये कोर्ट से जब डिसीजन होता है हमारा, जब हमने फ्रेश एप्लीकेशन दिया था तो तब हमारे बायोमेट्रिक्स हुए थे, फिर रिजेक्ट हो गया. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि नवंबर से आपको कोर्ट से तो मिल गया आपको डिसीजन, लेकिन होम ऑफिस की तरफ से कोई चीज आपको आई है कि नहीं आई? नहीं, कुछ भी नहीं आया. कुछ नहीं. उन्होंने अपील तो नहीं कर दी इसके खिलाफ? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया. इतनी देर लगती नहीं है. जो हमारा डिसीजन लिया था ना जी, वो UKBA का जो लॉयर था उसने डिसीजन लिया है हमारे हक में. अच्छा, ठीक है. हाँ जी. तो ओके, आपका कोई जी आप लीगल रिप्रेजेंटेशन फाइजा, कोई आपके कोई सोलिसिटर था इस केस में इन्वॉल्व्ड? हाँ जी, सोलिसिटर है हमारा. चलो ठीक है. ऑलराइट, नो वरीज. हमारे पास आपका क्वेश्चन आ गया, आपको जवाब दे दें. थैंक यू फॉर दैट. एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो जी, वेलकम टू द प्रोग्राम. आप अपने जरा से बैकग्राउंड पे नॉइज आ रही है. सिस्टर, कैन यू कीप दैट लिटिल बिट लो? वेलकम टू द प्रोग्राम लीगल मैटर्स. आप अपना क्वेश्चन बताएंगे ब्रदर, और अपना नाम बताएं. My name is Muhammad Ali. I'm calling from London. Okay, welcome to the program. जी जनाब. Thank you. I've been given discretionary leave 3 years ago, back in May 2012. ठीक है. To join, and I'm a dependent of my wife. We were married long time, and I need to extend my visa and in May 2015. So what is the best procedure? Should I apply for indefinite or apply for another 3-year visa, or should I go to apply at the home office directly, appointment, or by post? I just want to know. No problem. शुक्रिया, आपका क्वेश्चन आ गया, आपको जवाब देंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. खाली साहब, एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो, वेलकम टू द प्रोग्राम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से?
ہاں میں یو ایس اے سے بول رہا ہوں. میرا نام جعفر قریشی ہے. مجھے لیگل میٹر والوں سے ذرا کوشچن کرنا ہے. میں ابھی پروگرام دیکھ رہا ہوں کا. جعفر قریشی صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ لائیو آن ایئر ہیں. وی ویلکم یو فرام یو ایس اے. آپ اپنا کوشچن بتائیں. تھینک یو فار یور کال. میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا. وہ پاکستان میں ہے, وہ سوری لندن میں ہے 15 سال سے. وہ الکوہلک ہو گیا تھا. الکوہلک ہونے کے بعد وہ ہوم لیس ہو گیا سارا کچھ. تو میں اس کا کیس اپلائی کروانا چاہتا ہوں. وہ پولیٹیکل اسائلم پہ تھا. اچھا اوکے, آپ بات کریں, ہم لکھ رہے ہیں. جی سنیں آپ کی بات. آپ پولیٹیکل اسائلم اپلائی کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک اپلائی نہیں کیا؟ نہیں اپلائی نہیں کہ وہ جب ایئرپورٹ پہ آیا تھا تو اس وقت انہوں نے اسٹیمپ لگا کے پاسپورٹ انہوں نے باہر نکال دیا تھا. وہ پورے وہ گروپ کے ساتھ تھا ان 1999. تو اس وقت سے لے کے کوئی اپلیکیشن نہیں کی؟ نہیں کوئی اپلیکیشن نہیں. انہوں نے وہ پہلے جب وہ 1 سال اس نے وہ ٹھیک رہا, اس کو لیٹر بھیجتے تھے, وہ پوسٹ پون کرتا رہا انٹرویو. تو اب وہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد وہ الکوہلک ہو گیا. اب الحمدللہ اب وہ ٹھیک ہے. وہ نہیں, آپ نے کہا کہ جی ان کو وہ لیٹر لکھتے تھے تو وہ جواب نہیں دے رہے تھے. اس کا مطلب کہ کی تھی اسائلم؟ جی جی اسائلم کی تھی. جی جی اچھا ٹھیک ہے, چلو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے قریشی صاحب کی واچنگ پروگرام آپ کو جواب دیتے ہیں. تھینک یو فار یور کال. Thanks sir, we're going to be going for break in a few minutes. So obviously پھر ہم بریک کے بعد سارے جواب دیں گے. There are a number of discussions ہم یہ بھی جاری رکھیں گے. The point based system we want to talk about that. جی جی. Because it's very important. Point based system کو ہم تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں a little bit more. But obviously اب ہمارے بریک کی طرف جا رہے ہیں. Before we do anything else, we're just going to have a short break کی جا رہی, and we're going to be back in a few moments. اور پھر آپ کو سارے جواب دے دیں, and we'll be more than happy to take your calls. Thank you. We'll be back very shortly.